Okay, let's start the session. Hello everyone. Welcome to PrepLadder's Pharmacology webinar with Dr. Govind Raigal. My name is Moore. I'm the marketing manager at PrepLadder. Dr. Govind Raigal will be talking about how to study pharmacology for second prof university exams. Before we start the webinar, I would like to tell a few guidelines to everyone. Keep your video on mute at all times so that we can save some bandwidth, and keep your screen on speaker view to having a better viewing experience of the webinar. You can share your queries in the chat box and Dr. Govind will answer them. I hope everyone enjoys a good training time. Over to you, sir. Hello everyone. This is Dr. Govind Raigal. नाम तो सुना होगा. I am professor of pharmacology, and I did my MBBS and MD pharmacology from University College of Medical Sciences and GTB Hospital, Delhi. And then I was assistant professor in Maulana Medical College, Delhi for 2 years. And after that, I am into teaching business, and I am teaching students since 2012 independently. So our today's discussion will be how to study pharmacology in second year exams, that means second professional period, not only for the second prof exams, but how to continually prepare for your PG entrance simultaneously. So that will be our session today. And before we start the session, I will like to say that there is a special gift for everyone attending this webinar. So do stay till the end. Everyone's clear? I hope my sound is clear. Please give some hands up or something so that I come to know. Yes, sir. Okay. Thank you. So we can start the session, and I will share a screen with you. I hope this is visible to everyone. So our topic is how to study pharmacology. So the first and the most important thing you need to know is which source you need to use, because there are plenty of textbooks, there are various online platforms, there are various MCQ books, and there are several things which can be utilized. And one thing is important, I will like to say that no source is bad, but whatever source you study, just believe in that and study that completely. That is one thing which is most important. Now, which sources I recommend, I will come to that. So in pharmacology textbooks, there are 4 textbooks which are generally studied by the students. These include Dr. K.K. Sharma and H.L. Sharma book, Dr. K.D. Tripathi's book, there is Katz's and Goodman and Gilman. So we will discuss, you need to study only one textbook, but one textbook you must study during your second professional exam. Any one out of these 4 you can choose. I will tell you what is the advantage and disadvantage of different textbooks. That means what you can find in these textbooks, and according to that you can choose your textbook. Then there will be, if some students may say they want to do MCQs, for that they require a hard copy book. So MCQ book, I have written that book for you, Review of Pharmacology. 14th edition is already going on, and maybe in 2 months 15th edition will be available. Then there is some question answer book, how to write different questions in the exams. So that book is again written by me. It is Simplified Pharmacology. Then there is PrepLadder app, in which you can see the videos, you can solve the tests, you can solve the MCQs and many more. And last source will be your clinical postings. So I will be talking about each one of these in little detail so that you can get an idea. So which source you need to choose. So these are the 2 textbooks which are most commonly being followed in India. One is Principles of Pharmacology by Dr. Sharma, and second is Essentials of Medical Pharmacology by Dr. K.D. Tripathi. So coming to the pros and cons of these textbooks, Dr. K.D. Tripathi textbook, it has been the standard book since around 40-50 years now. Almost everyone is studying this textbook. The major advantage of this textbook, or I can say positive point about this textbook, is you can find almost any information in this textbook. It is around 1000 pages book, and you can find almost every drug with the almost every point about that drug in this textbook.
But the major second and another advantage of this textbook is you can find the information in such a way that you can write the questions in the exam. You can find in the points. If in the exam usually question asks like write 3 points, 3 uses of this drug, so it is given in those that system. So in the exam you can, if you have rectified that thing, you can easily write in the exam. Now coming to major con of this textbook, this textbook has plenty of information, but you will not be able to remember that. That is very difficult because the conceptual part is quite missing. So if you find, you will find the 5 uses of this drug, but how those uses are there, why it is used in those conditions, so that is not there in most of the circumstances, and that makes it very difficult to remember, because already there are thousands of things to remember in pharmacology, and if you do not apply the concepts behind most of them, then it will become very difficult. So it is very difficult book to retain. Coming to Dr. Sharma's book, Principle of Pharmacology, it is a balanced book in the sense that this book, it is given in the tabular form. You can write the answers in the exams, and plus it has plenty of concepts also. So this book may not contain every information, every detail about all the drugs, but that is not required in second prof exams. So my take out of the 2 books is going with the Principles of Pharmacology. But I will advise you that whichever book you are following, every book is good. So don't think that you need to shift to the other book. But if you have not started, I will recommend that you start with Dr. Sharma's book. Then 2 more books are there, and I advise these books to be kept as a reference. I will not advise them to be kept as a main textbook to study, although you have plenty of time, you can study these books also. But the major disadvantage of Catterton and Goldman and Gilman, the major disadvantage is even after you study these textbooks thoroughly, in the exam you will not be able to write the answers, because these are not according to the Indian pattern. These are not in the tabular form. They are having the big text, like 2 paragraphs are there about a drug, and you need to find out the information, and which becomes very difficult during the exam. So these textbooks are very good textbooks, but I will advise you to keep these for reference purpose. If you have any problem in those textbooks like Sharma's and K.D. Tripaঠি's, then you can see always in these textbooks. So I will not recommend these as the primary source. The primary should be either Dr. K.K. Sharma's book or Dr. K.D. Tripaঠি's. Okay. Then on the left side, there is a review of pharmacology book, and right side simplified pharmacology. Both of these books are authored by me and Dr. Sparsh Gupta. Left side book, that means review of pharmacology, is the MCQ book. You can find in very brief the theory part. That means every chapter is given in 5-10 pages. Depending upon the length of the chapter. If it is smaller chapter, maybe 5-6 pages. If it's a bigger chapter, maybe 10-11-12 pages. The theory part very briefly, but with the mnemonics, etc. it is given. And after that, there are plenty of MCQs. So if you want to practice MCQs, lot of MCQs, and you are not comfortable with the online source, you cannot sit long time on the computer, then this is the book for you. So you can take this. On the right side is the simplified pharmacology. This is a exam book, means this book contains question answer format, and in the exam different types of questions are asked, and those questions are answered, and it is also mentioned how to write or what the examiner expects in those questions. So that is given in this textbook. So accordingly you can choose these books also. And lastly, there is a pharmacology app. You all must be knowing about this. This app is containing almost everything. That means it contains the videos also. That means lectures. Plus it contains the MCQs. Plus it contains lot of tests also. So this is a complete package in itself. Okay. This is the most important thing I will like to say: clinical postings. Most of the time, the students ignore this question totally in the second year exam, and this commonly happens because exam में postings में हम जाते हैं शुरू में, at the starting of the second prof everyone is very enthusiastic कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, postings में जाएंगे और वहां पे हम सीखेंगे, but most of the times वहां पे हमें residents भगा देते हैं कि अभी तो फाइनल ईयर्स वाले हमको सीखने दो, आप जाओ. And we do not have any basic knowledge of pathology, pharmacology, medicine. किसी की भी knowledge नहीं होती, and we are not able to understand anything. So I will advise you still you stay in the postings.
डेली जब भी आपकी पोस्टिंग हो, यू अटेंड दैट फॉर मे बी 1 hour, मे बी 2 hour, जितने भी टाइम की पोस्टिंग्स है अटेंड करो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल लाइक यू टू इन दिस सेकंड प्रॉफ टू डू इज कि एटलीस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डू इट योरसेल्फ. आप हॉस्पिटल में जाओगे, नर्स जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल इंजेक्शन एप्लीकेशन, सो डिफरेंट तरह के रूट से दवाइयां दे रही होगी, ठीक है. एंड इट सीम्स वेरी इजी कि इंजेक्शन ही तो देना है, ठीक है. बट mind you, 99% of the students after completing final year exams are not confident in giving the injections. आपको IM इंजेक्शन देने तक में कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है. मेरे को खुद नहीं था, मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया था एंड वन ऑफ माय पड़ोसी केम एंड के भैया मेरे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देना जरा इनको. तो मेरे IM इंजेक्शन लगाने में, ऑल्दो आई नो थ्योरेटिकली एवरीथिंग, बट मेरे हाथ पैर फूल रहे थे कि मैंने कभी लगाया नहीं था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल जब भी आप कॉलेज जाओ, गिव द डिफरेंट इंजेक्शन. सिस्टर को बोलो सिस्टर मुझे सिखा दो IM लगाना, IV लगाना, सबकुटेनियस लगाना. सो ऑल द इंजेक्शंस यू शुड गिव. आप 5-5, 10-10 बार इंजेक्शन दोगे, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली गो एनीवेयर. बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एटलीस्ट आप इंजेक्शंस लगाना क्लिनिकल पोस्टिंग्स में सीखो. प्लस जितना भी आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में केसेस देखते हो, ट्राई टू रीड देम after coming back from the Robbins pathology and from the textbook of pharmacology. So that will be a good source for learning. Okay, तो clinical postings को ignore मत करना, that is important. So someone has asked something. Is sir audible? I am unable to hear him. What to do? Guys, am I audible? Please let me know. Not audible. One is saying audible. Yes sir. Yes sir for not audible or audible? Audible. Okay. You are audible. Okay. So I am audible. Please अपनी जिनको नहीं सुनाई दे रहा है, please adjust your volumes. So maybe I will be audible. So we were discussing the sources of different type of sources. We talked about different type of books. We talked about MCQs books, textbooks, help books, and about the app and clinical posting. So I hope you are quite sure about which source to use or which not to use. So this is important. Now coming to how to study. So how to study, I will divide it into different portions. First of all, and the most important thing is to make a schedule. This is the thing, जो सबसे पहली चीज है, इसी में most of the students falter. वो शेड्यूल ही नहीं बनाते, रैंडमली कभी भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं. एंड व्हेन वी डू लाइक दिस, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एट द एंड टू कंपाइल कि हमने क्या पढ़ा है, एग्जाम में क्या कैसे करना है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ शेड्यूल कि आपने कितने टाइम में सिलेबस खत्म करना है और कैसे कैसे खत्म करो. ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन मेकिंग अ शेड्यूल. बाकी द शेड्यूल शुड बी डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज हर कन्वीनियंस. उसके पास कितना टाइम है, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, हाउ लॉन्ग शी कैन सिट, एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ शेड्यूल. देन in the schedule, but 5 things you will do is you will listen to video lectures, you will read the textbook, you will solve the MCQs, you will see the previous year questions and also the questions from the question answer book, and most importantly either make notes or you should mark in the book. I will read come to these all in detail one by one. एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले मेकिंग अ शेड्यूल का क्या मतलब है, आप शेड्यूल कैसे बनाओ. शेड्यूल बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें रिक्वायरमेंट हैं. First of all, and the most important is how much time is in your hands. Like if you have just started the second prof, तो आपके पास around 10-11 months. But if you are already in the middle of the second prof, you have around 5-6 months only. So depending upon time आपके पास कितना है. I will advise you to do one topic every week. So it is different for every students. Some students may do many topics also, but I will advise one topic per week. But one topic का मतलब क्या है? It depends upon that one topic कितना बड़ा होगा, depending upon how much time do you have. Like I am saying one topic every week. So if you have only 20 weeks, तो आपको पूरी फार्माकोलॉजी को 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है. So that one part will be one topic. Okay. If you have 40 weeks, you will need to divide it into 40 parts. So एक टॉपिक 1/40 हो जाएगा.
So according to that, you will choose the length of the topic. So what you will do is you will fix a day. आप एक दिन फिक्स कर लो, सपोज मंडे कर लिया, वेडनेसडे कर लिया, एंड टाइम फिक्स कर लिया. सपोज यू हैव फिक्स्ड मंडे 5 to 6, तो 5 to 7 कर लो. तो मंडे 5 to 7 आप उस टॉपिक का टेस्ट दोगे आफ्टर प्रिपेयरिंग. लाइक नेक्स्ट वीक सपोज आई हैव मेड अ शेड्यूल एंड आई हैव गिवन 7 days टू वन टॉपिक, and that topic जो 7th day आपका है मंडे है सपोज, तो at for 2 hours you will give a test of that topic to check whether whatever you have studied उसमें से आपको कितना याद. Okay, so one topic per week, एक day and time should be fixed to complete that topic, and you need to fix the number of topics according to the time available. And most important thing what I will advise is at this time try to do horizontal integration. ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन. सिंपल इसका मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मींस जिस प्रॉफ में आप हो, व्हाटएवर प्रॉफ यू आर, लाइक इन द सेकंड ईयर. अगेन समवन हैज वॉइस इज ब्रेकिंग सर. फिर से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है. No sir, okay. Please adjust your sound जिनको सुनाई नहीं दे रहा है. I think I'm clear to most of the students. So, but I was making a schedule. Sorry. Horizontal integration पे थे हम. Integration का simple मतलब होता है कि you need to combine 2 subjects or 3 subjects or 5 subjects and similar topics in them should be studied together. Okay? In this year, second prof, you are studying pathology and microbiology along with pharmacology. So I will advise the horizontal integration. The meaning is, suppose you have fixed the topic of antimicrobial agents, then try to study from the microbiology about those bacteria in the same week. आप बस 7 के 7 दिन एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं. You will study microbiology, pathology also in different days. So try to keep the topics of microbiology and pathology in sync with pharmacology. लाइक अगर फार्माकोलॉजी में आप सीवीएस पढ़ रहे हो तो ट्राई टू स्टडी सीवीएस फ्रॉम द पैथोलॉजी इन सेम वीक. तो उससे इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन थोड़ा करने की कोशिश करना है इस साल. नाउ शेड्यूल का हमने बता दिया शेड्यूल कैसे बनाना है. नाउ 5 things you need to do in that is, first thing you need to do is listen to video lectures. Now, why I am recommending this? You need to do all 5 things. Listen to video lectures because if you see जो मेरी फार्माकोलॉजी की ऐप है, that contains total video lectures of around 40 to 45 hours. 40 से 45 घंटे के लेक्चर में आपकी पूरी फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगी. Okay? So listen to video lecture means like you are trying to study जनरल फार्माकोलॉजी. आपका पहला टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी है, सपोज उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स है. When you listen to video lecture of pharmacokinetics, it will take hardly 1.5 to 2 hours. So 1.5 to 2 hours का आप lecture सुनोगे. So broadly you will come to know that these are the points you need to focus. Remember, no video lecture, no notes, they can complete everything. कोई भी complete कभी हो ही नहीं सकता चाहे जितना भी detailed में हो. Important thing is to do self study. और सेल्फ स्टडी करने के लिए यू हैव सो मेनी सोर्सेज, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बट उन सोर्सेज में किस चीज पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन what thing whichever have been studied in taught in the video lectures. So video lecture will give you a idea कि टेक्स्ट बुक में जिसमें 100 पेज का चैप्टर है उसमें से कौन सी चीजों पे आपको कंसंट्रेट ज्यादा करना है, which other things you can quickly skip या quickly read. Okay, so that is important. Then second thing is read textbook. Whichever textbook you choose, एक ही textbook choose करो. That textbook minimum one time should be studied from first page to last page. एक बार पूरी शुरू से एंड तक पढ़ देनी है, चाहे उसको कहानी समझ के पढ़ लो. Do not try to remember things. फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल याद करने की कोशिश ही नहीं करनी है. Like you have listened to a video lecture of pharmacokinetics. Now open the textbook, whether you are studying KK Sharma or KD Tripathi or whatever textbook, उस textbook को पढ़ो और pharmacokinetics वाला पूरा chapter एक quick reading दे दो. And when you give a quick reading, you will find many extra topics and some stories also, because textbooks they contain history also and some funny things also. तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी. So some things will go into your brain permanent. ठीक है, but
when you are studying textbook, after listening to the video lectures, you will come to know कि textbook में ये चीजें जो video lecture में थी ये ज्यादा important है, so you can correlate कि textbook में ये चीज लिखी है क्यों लिखी हुई. Okay, so that is important. Read the textbook. First reading बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करनी है, just एक reading समझने के लिए देनी है कि आपको topic समझ आ गया बस. ओके तो रिपीटेड जब हम रिविजन करेंगे तब आप चीजें अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगी. फर्स्ट टाइम में याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है, बिकॉज इफ यू ट्राई टू रिमेंबर, एक तो खत्म नहीं होगा और दूसरा उसमें आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, ये तो बहुत मुश्किल है. डोंट ट्राई टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व एमसीक्यू. नाउ फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू you will have two major sources. You can use PrepLadder app, you can use the review book. So if you are comfortable with the online sources, you can use the apps, and if you are not comfortable with the online, you can use the review book. So important thing is you need to solve the MCQ of that chapter जो आपने पढ़ा है. उस वीक में आपने MCQ भी करने हैं. Solving MCQ does not make you prepare only for PG entrance. जब आप MCQ solve करते हो तो आपको टॉपिक और ज्यादा क्लियर होता है. When you solve the MCQ, then you come to know कि ये चीज इसमें क्यों आई, इस तरीके से क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों नहीं हुआ. सॉल्विंग एमसीक्यू अंडरस्टैंड योर इंक्रीजेस योर कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, व्हाटएवर एग्जाम इट इज, यू कैन इजीली क्लियर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द एमसीक्यूज इन दिस ईयर. So this is very important. Okay, then CPYQ. PYQ is previous year's questions. Now here I am talking about the previous year's university questions. So whichever university you are studying in, उनके हमेशा पिछले 5 साल के 10 साल के क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी के क्वेश्चंस आए. सो जस्ट सी दोज क्वेश्चंस आफ्टर डूइंग दैट यूनिट. उसी वीक में फार्माकोकाइनेटिक्स में से पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, मार्क दोज क्वेश्चंस इन द बुक, टेक्स्ट बुक जहां से आपने पढ़ा था, ताकि व्हेनेवर द एग्जाम इज नियर तो एटलीस्ट यू आर मस्ट बी स्टडिंग दोज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. एंड आई विल रिकमेंड right in the beginning do the question answer book also. जो simplified pharmacology मैंने आपको दिखाई थी, question answer booklet भी अभी करनी है, because many students what they do इस समय टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहते हैं और एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले क्वेश्चन आंसर बुक उठा लेते हैं. so that is totally new to you at that time. ठीक है, अभी साथ के साथ एक रीडिंग दे दो ना यार, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर की बुक है ऑलरेडी बहुत छोटी है, और अगर आप उसमें से भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, हार्डली यू विल स्पेंड 20 मिनट्स. तो 15-20 मिनट अगर अभी दे दोगे तो एग्जाम के टाइम जो है बिल्कुल नई नहीं लगेगी आपको आंसर करना इजी हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आप पढ़ रहे हो, आप ये सोच के पढ़ो कि नेक्स्ट रीडिंग जब आप दोगे तो दैट रीडिंग शुड फिनिश इन हाफ द टाइम मिनिमम. वो हाफ द टाइम में कैसे खत्म होगी, वो दो तरीके हैं. या तो आप अपने नोट्स अभी बना लो सो दैट नोट्स यू कैन क्विकली फिनिश. एंड सेकंड पार्ट, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट गुड इन मेकिंग नोट्स, या आपको बोरियत लगती है या टाइम ज्यादा लगता है, देन यू कैन मार्क इन दी बुक. अब मार्किंग इन दी बुक भी 2-3 तरीके की होती है. सम पीपल व्हाट दे डू कि मैं बुक में मार्क कर रहा हूं, दे विल अंडरलाइन एवरी लाइन, हर एक चीज लाइन कर दी, अंडरलाइन कर दी, पहले पेंसिल से कर दी, फिर पेन से कर दी, फिर मार्कर से कर दी, हर एक चीज पूरी बुक कलर्ड है. जब आपकी पूरी बुक कलर्ड है तो मार्किंग का फायदा क्या है? मार्किंग का मतलब ये है कि जो चीजें आपको नेक्स्ट रीडिंग में पढ़नी है. सो व्हेन यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए एक पेज आप पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको साफ पता लग जाएगा कि ये चीज तो मुझे ऑलरेडी आती है, और या ये कहानी है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डू नॉट अंडरलाइन देम. ठीक है, तो जो चीजें आपको लगता है आपको नहीं आती एंड दे आर डिफिकल्ट, आप भूल सकते हो और वो काम की हैं, ओनली अंडरलाइन दोज सो दैट नेक्स्ट रीडिंग यू विल स्टडी ओनली द अंडरलाइंड पोर्शन. हर एक चीज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा. एंड इन सेकंड रीडिंग मार्क दोज थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर फ्रॉम दोज अंडरलाइन डिफरेंट कलर. अलग कलर से मार्क करोगे तो थर्ड रीडिंग जो है और जल्दी हो जाएगी. इफ यू स्टडी इन दिस पैटर्न तो एग्जाम के पास आके यू कैन कंप्लीट योर होल बुक बिफोर द एग्जाम, एक दिन के अंदर. ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता है. तो मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे मार्क करोगे, प्लस आई विल रेकमेंड के बुक के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क कर लो कि इस पे एक्सप्लेन वाई आता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपको सर्च ना करना पड़े कि कौन सा चीज पढ़ूं कौन सा चीज नहीं पढ़ूं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग. तो ये हो गया हमारा स्टडी का कि किस तरीके से स्टडी करना है. हमने पहले एक शेड्यूल बनाया, और शेड्यूल बनाने के बाद एवरी वीक वी विल फर्स्ट क्विकली लिसन टू द वीडियो लेक्चर, देन रीड द टेक्स्ट बुक ऑफ द सेम टॉपिक, सॉल्व द एमसीक्यूज एंड सी द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन आंसर्स, एंड फाइनली मार्क इन द बुक और मेक नोट्स.
Now coming to revision, this is the most important thing, because in medicine, in pharmacology, in any subjects in MBBS, what we commonly say, अगर आपने 4 बार नहीं पढ़ा तो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा. Many students say me कि मैं तो 2 बार पढ़ चुका हूं, मेरे फिर भी याद नहीं. भाई किसी के भी नहीं याद होता 2 बार पढ़ने के बाद, किसी के याद नहीं होता. जीनियस नहीं हो कोई भी, इतना जीनियस कोई नहीं है कि 2 बार में याद हो जाए. So you need to study 4 to 5 times to remember things. So revision is very 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 important. तो एक रिवीजन तक करने का बहुत इजी तरीका है जो मोस्ट स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. व्हेनेवर इन दी कॉलेजेस यू हैव ट्यूटोरियल्स और कोई टेस्ट होते हैं कि गो प्रिपेयर्ड, बिना प्रिपेयर किए मत जाओ यार. ट्यूटोरियल आपकी मदद के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल आपकी मदद के लिए होते हैं. तो व्हेनेवर देयर इज एनी ट्यूटोरियल, एनी क्लास टेस्ट, आप प्रिपेयर करके जाओ. जब जाओगे तो एक रिवीजन तो वही होगी आपकी. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो टेस्ट वेस्ट कोई भी लाइटली मत लो, पढ़ के जाओ. ठीक है. देन I am starting a 12-week course of pharmacology. If someone wants to finish in 3 months, 3 महीने का कोर्स है 12 weeks का. तो अगर आप 3 महीने में खत्म करना चाहते हो, I have divided the topics. I will be starting from the 15th September. So you can give the test according to that. आप every week test होगा एक टॉपिक का. I will give the topics. मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है. मैं टॉपिक दूंगा एक, उस टॉपिक को आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे और उस दिन टेस्ट दोगे, so that आपका 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. तो इफ यू हैव लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम है 3 महीने से, तो आई विल एडवाइज टू यू टू डिवाइड द टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी इन डिफरेंट सेट्स. तो जैसे मैंने आपकी मदद के लिए, यू कैन मेक एनी सेट्स ऑफ योर चॉइस. आपकी मदद के लिए एक सेट होगा जनरल और एएनएस का. सेकंड सेट में कार्डियोवास्कुलर, किडनी और हेमेटोलॉजी हो गए, बिकॉज दीज हैव क्वाइट सिमिलर डिजीज पैटर्न्स. फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का एक सेट हो गया. इट्स अ क्वाइट बिग टॉपिक, इसलिए मैंने पूरा एक ही सेट में रखा है. देन सीएनएस एंड एनेस्थीसिया आर क्वाइट रिलेटेड ड्रग्स, तो इसका एक सेट हो गया. एंडोक्राइन और ऑटोक्वाड्स का एक सेट हो गया, और बाकी बचे हुए टॉपिक्स का एक सेट हो गया. तो 6 सेट्स में हमने डिवाइड किया है. सो व्हाट आई विल एडवाइज इज कि जैसे आपने एक वीक में जनरल कर लिया, फिर एएनएस कर लिया, जब एक सेट कंप्लीट हो गया, देन गिव अ टेस्ट ऑफ दिस. दोनों इकट्ठे का टेस्ट दे दो ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए. फिर जब सेकंड सेट कंप्लीट होगा, तीनों इकट्ठे का एक टेस्ट. सो व्हेन यू कीप ऑन गिविंग टेस्ट, देन आपका रिवीजन होता रहेगा बार बार. ठीक है. एक मैंने पैटर्न आपको बनाया है फॉर 6 मंथ्स. अगर आपको 6 मंथ्स आपके पास कोर्स कंप्लीट करना है 6 मंथ्स में, तो यू कैन सी दिस. ये आपको मैं फॉरवर्ड भी कर देंगे ये वाला वीडियो. तो एक पूरा सेट बनाया है जनरल में, जैसे एडीएमई, और फर्स्ट वीक में आप एडीएमई दे दो, सेकंड वीक में बाकी जनरल के टॉपिक्स दे दो, उसका थर्ड वीक में पैरासिम्पैथेटिक, फोर्थ में सिंपैथेटिक 1, फिफ्थ में बाकी एएनएस. तो इन दिस पैटर्न, सो आफ्टर दीस 2 टॉपिक्स आर कंप्लीट, देन नेक्स्ट वीक revise these topics and give a test. ठीक है. तो इस तरीके से I have completed the whole syllabus in 27 weeks. That means around 6 months. So if you have 6 months, you can follow this. Otherwise, you can prepare your own pattern. अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो. The important thing is आपको syllabus खत्म करना है. Okay. So this is how to study. But in spite of studying, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि मुझे आता था, मैंने एग्जाम में सब कुछ लिखा है, फिर भी नंबर नहीं मिले मेरे. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है. सो एग्जामिनर को क्या चाहिए, इफ यू नो दैट उस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या वर्ड लिखो या क्या चीज लिखो, देन यू विल ऑब्वियसली गेट मोर मार्क्स. सो यू शुड नो व्हाट इज टू बी रिटन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Usually around 6 type of questions are asked in pharmacology in various university exams. First type of questions are explain why questions. They give explain why this drug is used for this disease, or anything they ask, explain why this is. Second type of question asked is rationale of using beta blockers in glaucoma. So they ask like that. Third question is they ask drug treatment of malaria. Next question they can ask is therapeutic status of beta blockers in hypertension. Then short note and long question about some drug. So these are the 6 different type of questions which are asked, and we will try to discuss what to write in these different type of questions. Examiner को क्या चाहिए. First question is explain why. Self explanatory है. You need to explain why that statement is true or false, और क्यों क्या पूछी. Like explain why beta blockers are contraindicated in asthma. Okay. तो any question they may ask, explain why, कि ऐसा क्यों. तो many students what they do, they write answer like beta. Question was why beta blockers are contraindicated in asthma. They write beta blockers are contraindicated in asthma because they cause bronchoconstriction. That's quite right. Answer बिल्कुल सही. 2 नंबर का क्वेश्चन था, but still you will get 1.
बिकॉज एग्जामिनर को एक लाइन सुनने में, एक लाइन पढ़ने में मजा नहीं आता। एग्जामिनर को चाहिए तो कुछ तो डिटेल में बताओ, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रक्स है कि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, वो वर्ड तो आना ही चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू क्रिएट पॉइंट्स। क्रिएट पॉइंट्स मींस फर्स्ट यू विल टेल अबाउट बीटा ब्लॉकर्स होते क्या हैं, बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी जगह पे होते हैं, okay? Like they are present on the heart, present on the bronchus, etc. Okay? Then you will see that on the bronchus beta 2 was causing bronchodilation, and if we block beta 2 receptor it will result in bronchoconstriction. Asthmatic patient already have problem of bronchoconstriction, so if we block beta 2 the problem will worsen, so they are contraindicated in bronchial asthma. तो ये कंप्लीट हो गया। बट इवन बेटर यू कैन मेक अ डायग्राम। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, सिंपल डायग्राम, एक दो लाइनें बना दो कि ये ब्रोंकस नॉर्मल है, उसके बाद बीटा ब्लॉकर देने के बाद वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, छोटा हो गया। तो द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, एवरी एग्जामिनर लाइक ट्राई टू मेक डायग्राम्स एज मेनी एज पॉसिबल, क्योंकि डायग्राम जब बनते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और एग्जामिनर बहुत खुश होता है, मेरा टाइम बच गया। वो डायग्राम देखते ही समझ आएगा इसको आता है, तो वो मार्क्स दे देगा। क्लियर? सो दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज यू हैव मेड अ कंप्लीट पैराग्राफ, आपने सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर दे हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो आपका एग्जाम लेने आए हैं और उस समय उनको पेपर चेक करने हैं, दे हैव टू टेक वाइवा ऑफ 50 स्टूडेंट्स आल्सो, और 50 पेपर भी चेक करने हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है ढूंढने का कि उसमें से काम की चीज ढूंढो। सो राइट डाउन इन डिटेल एंड देन अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स, जैसे इसमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 ऑन द ब्रोंकस, एस्थमा में प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, सो दीज की वर्ड्स दे शुड बी अंडरलाइन। सो अगर एग्जामिनर के पास टाइम ना हो तो वो सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन देख के ये समझ ले कि इसको आता है। So that is very important कि you need to guide the examiner कि आपको क्या पढ़ना है इसमें से, ठीक है। So key points, try to make points, point wise लिखने की कोशिश करो। Number 2, make diagram as much as possible, diagram, flow chart, graph, कुछ ना कुछ बनाओ, बहुत easy होता है बनाना। And number 3, the highlighted point should be there, जो आप पढ़वाना चाहते हो एग्जामिनर को कि मैंने इसलिए लिखा है, तो उसको हाईलाइट कर दो ताकि एग्जामिनर एटलीस्ट वो चीज देखे। So that is explain why। तो explain why में अगर आप ये points follow करके लिखोगे, you will get 2 by 2, पक्का मिलेंगे आपको पूरे नंबर। So there will be no problem, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Second question was rationale, so do not get confused कि what is rationale of using beta blocker in glaucoma, अगर पूछा है तो इसमें क्या लिखें। Rationale simply means explain why beta blockers are used in glaucoma। If they're saying what is rationale of using beta blocker in glaucoma, it means explain why beta blockers are used in glaucoma. So you need to write same things as we discussed earlier in explain why। तो explain why और rationale question same चीज होती है। rationale मतलब explain why ऐसा क्यों करते हैं, okay। Now third question is on drug treatment। ड्रग ट्रीटमेंट, इसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे फॉल्टर करते हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड राइट द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया या ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एनी डिजीज दे से राइट द ड्रग ट्रीटमेंट। So most of the students what they do, they directly start in malaria we use chloroquine, we use quinine, we use this, they write the dose and finish, और फिर कहेंगे कि हमें नंबर नहीं मिलते। ड्रग ट्रीटमेंट में when they are saying drug treatment, you cannot write only drugs। first you need to divide it into 3 or 4 portions। first of all, whichever disease they are asking the treatment for, very briefly उस disease के बारे में लिखना है। Like drug treatment of malaria लिख रहे हैं तो first you will write malaria, it is caused by plasmodium, it is transmitted by anopheles mosquito, the symptoms are fever, chills, rigors, etc। छोटी सी चीज। then second very important thing जो कोई भी स्टूडेंट नहीं लिखता और मार्क्स लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, it is objectives of treatment। जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट हम करके हम चाहते क्या है, क्या हो जाए, what thing we want, ठीक है। इसमें हम क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रीटमेंट के, लाइक इन मलेरिया आई विल बी टेलिंग यू, मलेरिया में क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 ट्रीट फीवर, पेशेंट को फीवर है। नंबर 2 किल प्लाज्मोडियम, एंड नंबर 3 प्रिवेंट रिलैप्स, ठीक है। तो ये हम 3 चीजें चाहते हैं कि हमें फीवर उसका ठीक करना है, हमने उसके प्लाज्मोडियम को मारना है और हमें चाहते हैं दोबारा ना हो, ठीक है। तो देन जो अपने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां यूज हो। Like for treating the fever, we can use paracetamol. If paracetamol is not effective, we can use other NSAIDs like aspirin या कोई भी और यूज कर सकते हैं। To kill the plasmodium, we can use this drug. To prevent the relapse, we can use these drugs, ठीक है। और उसके बाद
whatever drugs are most important, or we can say drug of choice है, जो सबसे important दवाइयां हैं, you can write the dose and schedule of those drugs. हर एक दवाई की डोज याद करने की जरूरत नहीं है, and practically possible भी नहीं. So you need to remember only few doses. पूरी फार्माकोलॉजी में you just need to remember around 40 to 50 ड्रग की डोज याद करनी है, सबकी याद करनी ही नहीं. ठीक है. सो सी दी प्रीवियस क्वेश्चन जिन पे ड्रग ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार, उनमें से एक मेन दवाई की जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी या मेन दवाई होगी उसकी डोज याद करनी है आपको, सबकी नहीं याद करनी. ओके, सो दिस इज व्हाट टू बी रिटन इन ड्रग ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेराप्यूटिक स्टेटस. थेराप्यूटिक स्टेटस ऑफ दिस ड्रग इन दिस कंडीशन. थेराप्यूटिक स्टेटस एक ऐसा क्वेश्चन है, इवन मेनी एग्जामिनर्स डू नॉट नो कि इसमें लिखना क्या होगा. First of all, we will try to understand the meaning of this question. Question is therapeutic status of we can say AC inhibitors in hypertension. Okay, ये question है. First of all, what is the meaning of this question? Meaning of this question is एक hypertension का patient है. उस hypertension के patient में AC inhibitors, उसकी treatment, therapeutic means treatment, उसके treatment में AC inhibitors का क्या status है? क्या status है का मतलब क्या है कि क्या हम हर एक patient में AC inhibitors देते, मतलब क्या वो ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन ड्रग्स है? अगर नहीं तो क्या वो सेकेंड लाइन ड्रग्स? अगर वो सेकेंड लाइन ड्रग्स भी नहीं है तो क्या हम कभी कभार देते? ठीक है, पहले तो ये. दूसरा, इन विच स्पेसिफिक पेशेंट भी यूज देम. अगर वो हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो कैन आर वी यूजिंग देम फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, या फिर अगर वो इमरजेंसी में आया, सडन बीपी बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो विच सब टाइप ऑफ दैट डिजीज वी आर यूजिंग दैट ड्रग. ठीक है, तो थेराप्यूटिक स्टेटस में आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो उस डिजीज के किसी पर्टिकुलर सब टाइप कंडीशन में यूज हो रहा है क्या नहीं, और दूसरा अगर यूज हो रहा है तो उसका स्टेटस क्या है, वेदर इट इज फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन या कभी कभार यूज करते हैं. ठीक है, और या हो सकता है स्टेटस ऐसा भी तो हो सकता है कि ना यूज करें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो. मेनी टाइम एग्जामिनर ट्राई टू कंफ्यूज, लाइक दे राइट थेराप्यूटिक स्टेटस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन अस्थमा. बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, तो ये भी एक स्टेटस हो गया कि हम नहीं यूज करें. ठीक है, सो in this question you will start with the statement this drug is first line या second line या drug of choice for this subtype of the disease. okay, like we are saying that AC inhibitors are first line drug for long term treatment of hypertension. okay, तो इस तरीके से शुरू करोगे. this is the statement, therapeutic status आपने बता दी, but the question is not complete. now you need to justify कि ये status क्यों है. If they are first line drugs तो उसके क्या फायदे बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में, why other drugs used in that condition are not first line, why this is first line, और अगर वो फर्स्ट लाइन नहीं है तो जो भी फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन क्यों है, ये क्यों नहीं. you need to justify that. so what you will write in this question is, first of all you will write the therapeutic status, then you will write which other drugs are used in that condition, and then you will justify कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है तो ये फर्स्ट लाइन क्यों है, बाकी बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट लाइन क्यों नहीं है. अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं है तो जो भी फर्स्ट लाइन है, why that is first line, why it is not. clear? so basically you need to compare different drugs used in this disease. okay, so that will complete your therapeutic status question. but exam में आके usually examiner भी confuse हो जाता है, student तो होती होते हैं. तो therapeutic status का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो जो आपको आता हो सब लिख देना, इसमें कुछ मत छोड़ना. ठीक, नेक्स्ट आर शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. शॉर्ट नोट जो होता है बोरिंग क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटलिस. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है. ठीक है, इफ यू राइट डिजिटलिस को कुछ भी लिख दोगे नहीं चलेगा, बट इफ यू मेक पार्ट्स, आपने सब हेडिंग्स बना लिए, मैंने आपको लिख के दिए क्या क्या सब हेडिंग्स बनाने हैं. इफ यू राइट इन दी सब हेडिंग्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम टू नो कि हाँ मेरा कुछ मिस तो नहीं हो गया. रिमेंबर दीज सब हेडिंग्स, 6-7 सब हेडिंग्स है, तो आपका कुछ मिस तो नहीं होगा, आपको सबसे पहले पता लग जाएगा अगर आपको आता है तो. दूसरी बात, इफ यू हैव रिटन सो मेनी सब हेडिंग्स तो एग्जामिनर को लगेगा कि बहुत सारा कुछ इसने लिख दिया है ड्रग के बारे में. ठीक है, सो व्हाट आर दी सब हेडिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट सब हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन. लाइक क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजॉक्सिन. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, डिजॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजिटलिस परप्यूरा प्लांट. अगर आपको पता है, नहीं तो कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, इट इज वन ऑफ द ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इंट्रोडक्शन में ब्रीफली लिख दो कौन से ग्रुप की दवाई. ओके, सेकंड हेडिंग शुड बी फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ज्यादातर दवाइयों की फार्माकोकाइनेटिक्स आपको नहीं पता हो, आई नो. ठीक है, वो एग्जाम जब आप पूरी फार्मा पढ़ लोगे तब भी नहीं पता हो, बट 2-3 things you always do.
फर्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यादातर दवाइयों का यू नो कि इसको ओरल देते हैं या इंजेक्टेबल देते हैं, ये पता लग जाता है पढ़ते पढ़ते जिन दवाइयों पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट दैट इन फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड, अगर आपको याद हो इन फार्माकोकाइनेटिक्स वी स्टडीड देयर इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर में तो हमारी 5 ही दवाइयां जीरो वाट पावर वाली, ठीक है। बाकी किसी भी दवाई में एटलीस्ट यू कैन राइट दिस ड्रग फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि इसको ये भी पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, ठीक है। एंड थर्ड, इफ देयर इज सम स्पेशल पॉइंट, लाइक इफ यू नो नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन बाय सबलिंगुअल रूट, इमरजेंसी में यूज करते हैं, तो एनी स्पेशल थिंग, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग, इफ यू नो सम स्पेशल थिंग यू कैन राइट दैट इन फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर नहीं है स्पेशल तो छोड़ दो, टेंशन मत लो, जस्ट राइट टू थिंग्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हिच काइनेटिक इट फॉलोज, ओके। Then comes the main portion, mechanism of action. Most examiner ये तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि you write the mechanism of action of that drug. Then uses, indications, आपको जो भी indication 2-4 पता है, adverse effects उसके लिखो, and contraindications and drug interactions. इन headings में बना दो. If you do not know the drug interactions, you can skip that portion. But other portions में एक-एक, दो-दो चीजें जरूर लिख दो, so that examiner come to know, you know that these things need to be written. और आपने अगर एक-एक, दो-दो लिख दी तो you will get very good marks. Okay. लॉन्ग क्वेश्चन भी सिमिलर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है कि क्लासिफाई एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनैलेप्रिल। तो दे हैव ऑलरेडी मस्ट बी गिविंग द सब हेडिंग्स। इफ दे हैव नॉट गिवन द सब हेडिंग्स तो इसी सब हेडिंग्स में आपको लिखना है एंड राइट लिटिल बिट मोर डिटेल। एंड अगेन आई विल टेल यू, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करो, wherever possible you can make flow chart diagram, try to make them। एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है शॉर्ट नोट सॉरी इन चीजों से, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, क्योंकि उसकी मेहनत बचती है, ओके। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस, मोस्टली क्या होता है कि आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में आए और हो सकता है आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ना आते, ठीक। इफ यू डू नॉट नो एनी क्वेश्चन, डू नॉट लीव दैट क्वेश्चन। आई वाज आल्सो एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहता, ठीक। बट कोई भी एग्जामिनर अपने रिस्क पे स्टूडेंट्स को मार्क्स भी नहीं देगा। सो इफ यू हैव लेफ्ट द स्पेस वैकेंट, आपने खाली छोड़ दिया जगह, मैं अगर मार्क्स दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, बट अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो मैं उसमें नंबर दे सकता हूं, मैं फंसूंगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता, कोई ऐसी दवाई है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि ये CHF में यूज होती है, या कुछ भी बहुत कम पता है, ठीक है, सो you can write about that topic। मान लो आपको पता है कि डिजिटलिस CHF में यूज होती है, डिजिटलिस के बारे में कुछ नहीं पता, so you can write डिजिटलिस ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है 4-5 लाइनों में लिख दो। then you can write कि इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर we use AC inhibitors also, फिर AC inhibitor की 5 लाइनें लिख दी। at least write something, do not write wrong things। किसी मूवी की स्टोरी मत लिखो, ठीक है। write something which is correct but may not be related to that topic, but do not leave any question। this is very important। अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो पक्का 0 मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन में लिख दोगे तो शायद कुछ नंबर मिल सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, ये हमने पहले भी बताया था, यू मस्ट हाईलाइट द रेलेवेंट पॉइंट इन योर आंसर्स, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ आपका नहीं पढ़ेगा। आपने कितना भी अच्छा पैराग्राफ लिखा है, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता टू रीड एवरी वर्ड ऑफ यू बट यू हैव रिटन। सो यू नीड टू गाइड द एग्जामिनर कि सर ये तो जरूर देख लो। बाकी अगर आप देखना चाहो तो श्रद्धा है आपकी, नहीं देखना चाहो तो यू कैन लीव दैट, बट ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट आपके हैं विच विल फेच यू मार्क्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हाईलाइट द रेलेवेंट पॉइंट्स जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर पढ़े। अब कुछ स्पेशल टिप्स देता हूं। टू फार्माकोलॉजी इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो आई रीड एंड आई फॉरगेट, जो होता है कॉमन, हम पढ़ते हैं उसका तो भूल जाते हैं। आई हियर एंड आई अंडरस्टैंड, आप किसी का लेक्चर सुने, किसी से कोई दवाई के बारे में पढ़े तो आपको समझ आता है कि हाँ हमें समझ आ गया, बट फिर अगले दिन फिर भूल जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई डिस्कस एंड आई रिमेंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन हियर? डिस्कशन ये वो नहीं है कि जो हॉस्टल्स में होती है कि आप किसी के रूम में गए डिस्कशन करने और उसके बाद रात को 9 बजे गए थे, सवेरे 3 बजे निकले, ठीक है। कॉमनली दिस हैपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन इज, बट मेथड आई यूज्ड टू डू। अपने टाइम पे मैं कैसे याद करता था, मैं अपने टेबल पे स्टडी करने बैठा एंड बिफोर कंप्लीटिंग माय सिलेबस, जो भी मैं अपना पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद उठने से पहले आई विल राइट 5 डिफिकल्ट थिंग्स व्हिच आई फील के आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर। सो आई विल राइट 5 थिंग्स ऑन द पेपर, 5 चीजें मैं पेपर पे लिखूंगा। आई विल कम आउट ऑफ माय रूम,
द फर्स्ट पर्सन आई विल मीट, आई विल आस्क हिम, चल तू ये बता, तो ही मे टेल, ही मे नॉट टेल. अगर उसने बता दिया गुड, अगर उसने नहीं बताया यू टेल हिम द आंसर. डू नॉट वरी कि तुमने आंसर बता दिया तो उसको आ जाएगा, किसी के भी एक बार में याद नहीं होता. यू टेल हिम द आंसर. पांचों चीज, 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों के आंसर दे दिए उसको. ठीक है, देन गो टू द सेकंड पर्सन, आस्क दोस 5 थिंग्स, गिव हिम द आंसर्स. तीसरे को पूछा, फिर उसको आंसर दिए. सो यू आस्क 5 पीपल दोस थिंग्स, और वो पांचों चीजें जब आप 5 बार अपने मुंह से बोल दोगे तो दे विल गो इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यू विल नॉट फॉरगेट. तो ट्राई टू मेक दैट अ हैबिट ऑफ आस्किंग, डिस्कसिंग विद द फ्रेंड्स, नॉट इन डिटेल बट शॉर्ट टर्म में, 2 मिनट में, 3 मिनट में. इफ यू डू दिस, you speak 5 times about same thing, that thing will be in your memory. So that is very very good method of remembering things. Other methods of remembering things, use your walls. आप अपने रूम की वॉल्स पे जो भी चीज आपको मुश्किल लगती है, you write that down. ठीक है, you are confused between drugs with similar names. ठीक है, डाइप्रेडामोल, डाइजोपायरामाइड, बस्पाइरॉन, ब्यूप्रोपियन, एक जैसे नाम है, जो सिमिलर तरह की चीजें आपको लग रही हैं, एक छोटे से पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दिया, आते जाते पढ़ते गए. इफ यू स्टडी दैट 5 times 7 times you will start remembering. Similarly for difficult names, many drugs have very very difficult names. Difficult names में important, apart from चिपकाने से ज्यादा important है, you need to speak it out. आप अगर difficult name वाली दवाई का नाम 5 बार 6 बार बोलोगे तो it will start seeming easier. बार बार बोलोगे तो और ज्यादा इजी लगेगा. सो देन यू कैन रिमेंबर दिस. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो भी मुश्किल लगता है वॉल पे चिपकाओ, एंड रूम के अंदर आते हुए बाहर जाते हुए बार बार बीच बीच में पढ़ते रहो. सो रिवाइज फ्रीक्वेंटली, यू विल स्टार्ट रिमेंबर. एंड प्लस यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड्स. अपने ऐप में मैंने बहुत सारे मेथड्स दिए हैं टू ट्राई टू रिमेंबर द ड्रग्स. मोस्ट ऑफ द थिंग्स ड्रग के नाम से ढूंढने की कोशिश की है. ठीक है, यू कैन डिवाइज योर ओन मेथड्स टू रिमेंबर थिंग्स. This is important, particularly when you are solving MCQs. Don't target 100% questions while preparing. Like what happens commonly, that you know the topper of AIIMS or topper of NEET PG, how many marks he or she gets. Even he or she do not get 100% marks. Usually 80%, 82%, 85%. वो भी आज की डेट में. Around 2 years back, the highest marks were around 70-72%. Yeah. So that means even if you do not know 15 to 25% or 20% of the things, still you can be the topper. Clear? So why I am saying you कि एग्जाम में यूजुअली 15 से 20% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कभी आप आंसर नहीं कर सकते हो. कभी आप आंसर नहीं कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. सम क्वेश्चंस आर टोटली इररेलेवेंट, जिसको मैं हिंदी लैंग्वेज में कहता हूं कोई वाहियात क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है. ठीक है, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन अगले 10 साल में, 15 साल में, 50 साल में कभी पूछा ही नहीं जाएगा. लाइक once the question was asked in the exam, what is the speed of Anopheles mosquito? लिटरली क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, ऑल इंडिया के एग्जाम में. उस समय नीट नहीं होता था, ऑल इंडिया होता था. एनाफिलिस मॉस्किटो की स्पीड कितनी होती है? तो दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस. देन वेरियस गाइड बुक्स, वेरियस पीपल, दे स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल कि एनाफिलिस मॉस्किटो की स्पीड इतनी होती है. एग्जामिनर ने क्योंकि एनाफिलिस पे पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम दे में आस्क ऑन द कुलेक्स, दे में आस्क ऑन द अदर मॉस्किटोज. तो उन्होंने 10 मॉस्किटो की स्पीड लिख के दे दी कि याद कर लो. थोड़ा दिमाग लगाओ. एक सरफिरे एग्जामिनर ने फालतू में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, ठीक है, अगले 20 साल तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया. फिर भी आपके मन को तसल्ली नहीं होती तो उस क्वेश्चन को रट लो, बट उसके डिटेल में मत जाओ. Okay, so that is important. Do not target these type of questions. जो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि बकवास क्वेश्चन है, उन पे मेहनत नहीं करनी है, डिटेल में नहीं जाना. Okay. Second type of questions are there which may be important but which is practically not possible to remember. हिंदी लैंग्वेज में बोलो तो हमारी औकात ही नहीं है याद करने. जैसे in pharmacology questions are asked, this adverse effect is caused by which drug. Okay. Some of the important adverse effects we have already covered in our app. ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे. इंपॉर्टेंट जो है वो तो आपको करना ही है. बट लाइक देख, मैं आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का पूछ लेते हैं, ये वाली पिगमेंटेशन कौन सी दवाई नहीं करती. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माय बुक. आई हैव गिवन अराउंड 100 adverse effects. Every adverse effect caused by around 10, 12, 15 drugs. ठीक है, आप याद करना चाहते हो कर लो, करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे. Okay, don't waste time on these questions. If previously some question has been asked, just remember that drug and that adverse effect.
उसके ज्यादा डिटेल नहीं, ये भी करती हैं वो भी करती हैं, नहीं करना, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। तो यू नीड टू बी सिलेक्टिव बिकॉज at this time you are studying only pharmacology, but after 3-4 years when the PG exam will come, you will study 19 subjects, and remembering everything in 19 subjects, it is not practically possible, so you need to be selective कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, okay। Another important problem which you will not face now is about controversial questions. This will be problem when you come to the PG entrance exam time, because at that time you will be facing so many teachers, so many books, you will be studying different things, different subjects. Pharma में अलग लिखा होगा, anesthesia में अलग लिखा होगा, so there are several questions which are controversial. The question is controversial because different standard textbooks have given different answers to that question, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हार्डली एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एंड इवन दैट क्वेश्चन वी डू नॉट नो कि उसका आंसर क्या होगा। अगर आप 10 बार बहुत ज्यादा रिसर्च करके 10 घंटे वेस्ट करके आपने आंसर ढूंढ भी लिया, तो यू आर नॉट श्योर कि वेदर एग्जामिनर हैज डन द सेम हार्ड वर्क और उसने भी उसी बुक से वो क्वेश्चन आंसर बनाया है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। तो जो आपको सही लगे मन को याद कर लेना, डोंट वेस्ट टाइम ऑन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। और एमसीक्यू एग्जाम्स में you need to leave minimum questions, maximum attempt करने हैं, particularly if there is 1/4 negative marking, then try to attempt maximum to maximum questions, okay। चलो एक गेम खेलते हैं। The game is, हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को A to Z नंबरिंग कर दिया। A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, Z is 26. So we have given numbers to every letter, and now we are trying to find which is the most important thing to succeed. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सक्सेस पाने के लिए। तो जस्ट लाइक वी चेक, लाइक मोस्ट पीपल से, बहुत लोगों से सुना मैंने, वो कहते हैं कि वो इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो लकी था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द proportion the luck plays in giving you success. Luck कितना परसेंट चांस है। तो if you see L for 12, U is 21, C is 3, K is 11. So I have come to know कि luck do not play even 50% role. कभी भी कोई भी लक से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सिर्फ लक से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो देन वी थिंक कि नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज से तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। सो वी गेन्ड नॉलेज एंड वी कम टू नो नॉलेज की अगर हमने परसेंटेज काउंट की तो इट केम आउट टू बी 96%, क्वाइट हाई। तो 96% चांस है नॉलेज से सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन वी डू हार्ड वर्क, मेहनत दी, हार्ड वर्क किया, एंड वी केम टू 98%। स्टिल श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है। बट द वन थिंग दैट विल मेक यू सक्सेसफुल 100% श्योर शॉट गारंटी के साथ, एंड दैट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज वन दैट मैटर्स। अगर हमने ठान लिया कि ये करना है तो वो हो जाएगा, बट अगर हमारा एटीट्यूड ही ठीक नहीं है, हम सोचेंगे पता नहीं यार ये एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। बट जब हमने दिल में ठान लिया कि ये करना है तो वो हो जाएगा। एटीट्यूड इज द वन व्हिच विल गिव यू 100% चांस दैट के सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड से कुछ भी किया जा सकता है। इसको जानते हो? शी इज अरुणिमा सिन्हा। शी इज फ्रॉम यूपी की एक साधारण सी नॉर्मल सी लड़की थी। ट्रेन में एक दिन जा रहे थे, तो ट्रेन में कुछ वो आगे चोर आगे समझ लो, तो इसका सामान चुराने लग गए, इसका सामान छीनने लग गए। तो इसने अपना सामान नहीं दिया, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने चलती ट्रेन से इसको उठा के पटरी पे फेंक दिया, एंड शी वाज सिवियरली इंजर्ड। वो उठ भी नहीं पा रही थी, ट्रेन जाती रही, वो पटरी पे वहीं पे पड़ी रही, मक्खियां बैठी हुई हैं उसकी इंजरीज पे। तो पूरी रात वो ट्रेन की पटरी पे वैसी थी। सुबह लोगों ने देखा कि ऐसे कोई लड़की गिरी हुई है, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वहां जाके पता लगा, इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी टांग खराब हो गई है, पूरी टांग काटनी पड़ी। तो इस समय जब हॉस्पिटल में आप बैठे हो, आपको पता है कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, सबसे पहला ख्याल हमारे मन में क्या आएगा? जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई, जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बट दिस गर्ल उस समय हॉस्पिटल के बेड में जब डॉक्टर ने इसको बोला कि टांगे काटनी पड़ेंगी, तो इसने सोचा कि भाई मैं जिंदा बची हूं तो किसी कारण से तो बची हूं,
टांगे ही तो काटनी पड़ी है, बट मैं जिंदा बची हूँ, कोई बड़ा रीजन होगा मैं जिंदा बची हूँ, तो मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूँ, दुनिया की 7 पीक को क्लाइंब करूंगी। तो उसने उस समय, हम में से कोई साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता ये चीज, हम जस्ट सोचेंगे कि लाइफ खराब होगी, बट शी थॉट के मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूंगी, एंड आफ्टर दैट इसने वर्ल्ड की सारी पीक को फतेह किया है। सो दैट इज द एटीट्यूड। अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड वी ऑल नो इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो एटीट्यूड इज द ओनली वन थिंग दैट मैटर्स। अगर आपका राइट एटीट्यूड है तो यू कैन डू वंडर्स, कुछ भी कर सकते हैं। Our greatest weakness lies in giving up. गिव अप करना बहुत आसान है, ठीक है, बट द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। चाबी का गुच्छा होता है ना, बंच ऑफ कीज, हम एक ताला खोल रहे हैं चाबी से, एक चाबी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, नहीं खुला, बट कभी ना कभी तो वो चाबी आएगी जिससे खुलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोई ना कोई चाबी तो आपकी सफलता की मिलेगी आपको। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, आई एम टेलिंग। Remember, if you think you can, you can. If you think you cannot, you will certainly will not be able to. You cannot. Yeah? And either way, you are always right. अगर आप सोचोगे आप कर सकते हो तो भी सही हो, अगर आप सोचोगे नहीं कर सकते तो भी सही हो, then why to think के नहीं कर सकते? Always think you can. Okay? So this is all from my side. Now I'm open to questions. Some questions are already there. Sir, is it fine to leave space while doing subjective test, then come back to it, because at last only few minutes are left? Yes, you can definitely do, but you need to do time management. आपको एग्जाम जब भी कर रहे हो तो एग्जाम में you need to complete your exam 20 minutes before, 20 मिनट पहले खत्म कर लेना है, then you will see the empty spaces and write. सर शेड्यूल की स्लाइड एक बार और शो कर दीजिए। आई थिंक आई विल शेयर द पीडीएफ्स आल्सो, एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ शेड्यूल वाली भी। दिस शेड्यूल यू आर सीइंग ना? सर केडी त्रिपाठी नहीं पढ़ी मैंने, सिर्फ आपके नोट्स एनफ हैं। श्रीनाथ भाई नोट्स आर एनफ, बट आई विल रेकमेंड के एक टेक्स्ट बुक कोई ना कोई पढ़ लेना है एक्चुअली, because textbook memory remains in the brain for longer periods. Students, you can share your queries in chat box. Yes, everyone, please share your queries in this chat box, and I will be answering your queries also. But before that, एक आपको सरप्राइज जो आपको बोला था, स्पेशल गिफ्ट जो मैंने आपको बोला था, देयर इज स्पेशल गिफ्ट फॉर एवरीवन। द स्पेशल गिफ्ट इज फ्री प्रेप लैडर्स प्रीमियम कंटेंट फॉर 15 days. Okay, so at the end please write down your email address in the comment section to avail this. क्लियर? अभी क्वेश्चन आंसर करने के बाद करना प्लीज, ताकि अगर अभी कर दोगे तो बीच में कुछ मिस हो जाएंगे। सो एट द एंड प्लीज शेयर योर ईमेल आईडीज सो दैट यू कैन गेट द फ्री सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। शिवांशु एंड में करना है यार, अभी क्वेश्चंस के बीच में मिस हो जाएगी नहीं। सर हाउ टू ग्रैस्प द कांसेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर और इवन सब्जेक्ट्स? particular or even subject, I could not understand Galaxy M20 basically, or topic. Okay, that's why the videos are there, and I am here. You can write down my number also, I can write here. Please save my number. I am available on WhatsApp on this number. You can ask any queries anytime, and I hope after listening to my videos queries won't be there. ज्यादा queries नहीं होगी, almost everything is covered already in the videos. Sir, how to remember mechanism of action as there are so many drugs? यार हर एक का नहीं करना है, mostly drugs का whichever are important I have already covered, and I have tried to cover the mechanism from the name itself. Just listen to the videos once, उसके बाद आपको easy लगेगा सब कुछ. Is it necessary to know all drugs or only drug of choice for a disease? नहीं यार, सारी दवाइयां तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मेन ड्रग्स यू नीड टू नो, बेसिक क्लासिफिकेशन यू नीड टू नो कि किस किस तरह की दवाइयां उसमें होती हैं, और क्लासिफिकेशन के सब हेडिंग्स में आपको एक एक दो दो आती हैं तो काफी है। एवरी ड्रग इज नॉट रिक्वायर्ड। सर आई कुडंट सी योर नंबर। यार राइट डाउन अगेन, 9990044695 ऊपर है, 9990044695। स्लाइड पे अगर लिखा जाएगा तो लिख देता हूँ।
जस्ट अ मिनट गाइस, मैं अपना नंबर लिख दूं, लोग कहेंगे लिखा नहीं। स्टोक नाउ, ठीक है गाइस। Which classification should follow KDT or guys, KDT में ज्यादातर structural classification है, and I will advise you not to follow structural classification. Follow the clinical classification, therapeutic classification. That is easier to remember, that is clinically more relevant, and that is accepted by examiners now. सर एक वीक पढ़ने के बाद यार प्रेप लेटर wait. सर कैन यू प्लीज गिव सम टिप्स फॉर एफएमजीज? यार एफएमजीज का मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, प्लीज सी दी माई एंड डॉक्टर बोस MIB वीडियोस, एंड अदरवाइज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. Dear sir, please share the presentation of the seminar as it is very good. Definitely I will share, and Mridul please do the needful. Dear sir, please share the sir KD त्रिपाठी नहीं पढ़ी, ये मैंने आंसर कर दिया. Prep letter video on pharmacology enough for setting professional exams? I told you they are enough, but I will recommend to study the textbook also. How to remember mechanism I have already told. How to grasp the concept I have already told. Is it necessary to know all the drugs I told already? नंबर मैंने दे दिया. सर आपने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया था पीजी एंट्रेंस? शिनाथ, आई टुक फार्माकोलॉजी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे. This was my first attempt. I was getting clinical also, but I choose pharmacology. Reasons were something different. I think in one of my videos I have told that. फोन नंबर सर और एक बार लिख दिया यार ग्रुप पे. मृदुल ईमेल्स आप देख लेना यार. Prep letter not is enough for professional exams. Is Shanbag a good book? Priyanka, I'm very sorry, I will not recommend Shanbag. क्योंकि शानबाग अगर आप पढ़ोगे उससे अच्छा आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लो ना यार. एंड और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की बुक पढ़नी है तो दूसरी पढ़ लो. मतलब शानबाग जो है वो मिक्सचर सा है, खिचड़ी है, उसमें आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगी और एग्जाम में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे. So I'm very sorry to say, I don't like Shanbag because neither you get a feeling of textbook nor you get good marks by reading that book in the exams. So I will not recommend. Which classification I told you? Clinical classification. Sir, please update us about next exam, how to prepare for it and how much portion will come in it. Akanksha, no one knows about next exam till now. When any guidelines by government come, we will obviously update on all the websites, even Prep Letter will update. At present, I will advise everyone to make your basic concepts clear. अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एग्जाम कोई भी हो, नीट हो, एम्स हो, नेक्स्ट हो, हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. जस्ट मेक योर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर. सर एक वीक पढ़ने के बाद 2 वीक तक पढ़ने का मन नहीं करता, इसका क्या सोल्यूशन है? जतिन, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट. ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है. वो इसलिए होता है बिकॉज दे डू नॉट कीप द ब्रेक्स. ठीक है, एक वीक नहीं पढ़ना है आपको 6 दिन पढ़ना है. 7th डे शुड बी ब्रेक. एवरी वीक में 1 डे शुड बी ब्रेक, जिसमें आप अपने मन पसंद की चीज करोगे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ. एंड इफ यू डू नॉट कीप द ब्रेक्स तो आपका ब्रेन 2 वीक बाद, 3 वीक बाद अपने आप ब्रेक मांगेगा ही मांगेगा. एंड दैट अनशेड्यूल्ड ब्रेक इज वेरी वेरी लॉन्ग. वो फिर एक दिन की नहीं, वो 4-4 दिन, 6-6 दिन, एज यू सेड 2-2 हफ्ते तक चलती है. ठीक है, द सॉल्यूशन इज कि आप शेड्यूल्ड ब्रेक लो. आप पहले से बता दो अपने दिमाग को कि 6 ही दिन पढ़ना है, 7वां दिन आपका छुट्टी का है, फिर वो 7वें 8वें दिन फिर अपने पढ़ पाओ. सर आपने कौन से टाइम में क्लियर किया? बता दिया मैंने. शानबाग, प्रियंका, आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट एग्जाम आई टोल्ड यू. सर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कहां से पढ़नी चाहिए? इट्स गिवन इन माय बुक सिंप्लीफाइड फार्माकोलॉजी आल्सो, या फिर जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसमें भी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है. और यू कैन फॉलो इवन कैटजन में भी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है. यू कैन यूज एनी ऑफ द सोर्सेस.
Sir, which best book for pharmacology? I told you I will recommend for second prof KK Sharma book. Okay, but any of the book you can choose. Sir, how to study keeping next in mind? I mean, but to focus on MCQs 3. दोनों यार दोनों. MCQs are to fine tune your concepts. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए. थ्योरी तो पढ़नी है ऑब्वियसली, तो कॉन्सेप्ट आएंगी तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. कोई भी एग्जाम अगर कॉन्सेप्ट आती है तो यू कैन इजीली. सर कब से एक्टिव होगा फ्री 15 डेज? दिस मृदुल विल अपडेट. सर इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स इन अदर सब्जेक्ट? यस यस, हर एक सब्जेक्ट में जब आप प्रॉफ में हो तो हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है. एंड इट इज इजी, यू कैन इजीली स्टडी. ऐसा नहीं है, मतलब दिमाग में मत लगाओगे इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ी जाएगी यार, एक कहानी की तरह पढ़ लो, एक बार तो पढ़नी. Sir, for people who have not been able to study in an organized manner from before, do we need to start over again from first chapter? Yes, if you have sufficient time. स्मृति, अगर आपके पास sufficient time है तो आप पढ़ो. जो prof already पास कर चुके हो उसमें अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, बट जो अभी चल रहा है, if you have 4 months or more, then try to study in organized manner. 4 months are more than enough to do any prof by study. 4 महीने बहुत होते हैं. Sir, keep conducting webinars like this. Sure, Anvesh, I will definitely. Sir, please tell something about USMLE. Yeah, USMLE, I do not know too much, Sanaullah, but the basic thing you need to know that USMLE is more clinical. उसमें आप do not give the step 1 after doing the second prof. I will advise तो थोड़ा सा clinical exposure के बाद if you give the MLE exam, then you will get better marks, because उसमें फार्मा में, पैथो में, माइक्रो में, एनाटॉमी में नो डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इट इज ऑलवेज क्लिनिकल के पेशेंट ऐसे करके आया तो आप बताओ, तो दैट विल बी मोर क्लियर इफ यू नो लिटिल बिट क्लिनिकल. should we study all subjects daily or can we take a 2-day break for a particular subject? Priyanka, it all varies from person to person. कुछ लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते, so even you can study 4 subjects in a day, maybe 1 subject a day, maybe 2 subjects a day. It is all up to you. But in 1 week you should touch all the 4 subjects. ठीक है, वो अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते. Sir, we need one pathology webinar also. Mridul, please talk with Dr. Sparsh if he is available. Sir, ड्रग मैनेजमेंट का क्वेश्चन कैसे आंसर करें? यार आप मैंने इतना डिटेल में तो बताया था. प्लीज लिसन टू दिस वीडियो, दोबारा से सुन लेना. एंड मेरी सिंप्लीफाइड बुक में भी दे रखा है किस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है. एंड आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग. सर आपके बुक्स या केडीटी पढ़ूं फॉर कॉन्सेप्ट्स? यार दोनों पढ़ने पड़ेंगे. मतलब लिसन टू द वीडियोस एंड देन रीड द केडीटी और केके शर्मा, एनी वन ऑफ देम, योर कॉन्सेप्ट्स विल बी रॉक सॉलिड. सर टेल समथिंग अबाउट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. डिफरेंट टीचर्स विल टॉक, जो स्पेशलिस्ट है यार. आई कैन नॉट टॉक दैट मच. एमएलई के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा बहुत जितना मुझे आता था. हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी फॉर यूएसएमएलई? आदित्य, अगर फार्माकोलॉजी स्पेसिफिकली यूएसएमएलई के लिए आप कह रहे हो तो आई विल एडवाइज यू टू स्टडी अ बुक कॉल्ड एज प्री टेस्ट. नंबर 1 प्री टेस्ट फार्माकोलॉजी एंड नंबर 2 कैटजंग रिव्यू, नॉट मेन कैटजंग. कैटजंग रिव्यू जो एमसीक्यू बड़ी है, जिसमें हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के अराउंड 10-12 एमसीक्यूज है, उसकी एक्सप्लेनेशंस है. एंड सेकंड प्री टेस्ट फार्माकोलॉजी. इफ यू डू दीस टू तो फार्मा का एमएलई के लिए क्लियर हो गया. सर एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए या डिफरेंट बुक्स एज अ रेफरेंस यूज करना चाहिए? एक ही बुक यार. इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टडी वन थिंग 5 टाइम्स rather than 5 things 1 time. ठीक है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना चाहिए. We love you, sir. I love you too, Durga, and all the students I love you. Sir, do we read only one subject or for a week? मैंने आपको बता दिया सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आपको एक वीक में, तो पर आप डे में डिवाइड कर सकते हो. सकता है 2 दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो, हो सकता है उन दिन में भी एक 2 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते. Sir, I am totally confused how to start and which videos I have to choose. I didn't get concentration getting tensed daily about studies. Ravi, don't try to do too many things. और एक दिन में बहुत ज्यादा वीडियो देखने की कोशिश मत करो. Just listen to a video, maybe 1 hour, maybe 1.5 hour in one day, and then study same things from the books or the other sources. तो उससे आपको याद भी ज्यादा रहेगा और दिमाग भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं. ओके, आई थिंक कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज. बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप. थैंक यू शिना, थैंक यू वेरी मच. सो गाइज, आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज. सर डू वी हैव टू मेक नोट्स? आई टोल्ड यू, इट्स अप टू यू. अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है इट विल बी बेस्ट. अगर नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, यू कैन यूज प्रिंटेड नोट्स और यू कैन मार्क इन द बुक.
both 2-3 options up you have. How are you, sir? I'm fine, Subhajit. Thank you. And how are you? Ravi, thank you. So Redmi Note 8, thank you. So I think we can stop this webinar now. Please, how to revise after second year? What was the question? I think. Sir, कि आपकी बुक कहाँ मिलेगी? You will find on any book shop. किसी भी medical book shop पे मिल जाएगी. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, sir. Mridul, Thank you. I think I should. Yes, yes. Thank you. Thank you.